بڑی امامت جو ہے نا، جس کو آپ سیاسی امامت کہتے ہیں، اس کا کرائٹیریا، اس کا معیار جو ہے وہ اسی امامت سے شروع ہوتا ہے جو مسجدوں کے اندر کروائی جاتی ہے۔ یہیں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی اپنی امت کی۔ مثلا آپ جتنے بھی احباب ہیں، یہ مسجد آپ کے گاؤں میں ہے، اگر آپ کو پتہ چلے کہ حافظ صاحب شرابی ہیں تو آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ بولیں۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ زانی ہیں تو پڑھیں گے؟ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ دغا باز اور فریبی ہیں اور فراڈی ہیں تو آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ دھوکے دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں ٹھیک نہیں ہیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، کردار ٹھیک نہیں، اخلاق ٹھیک نہیں، تو آپ کہیں گے کہ جی نہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نمازی پیچھے سارے کے سارے داڑھی منڈے ہوں تو نماز میں فرق، جماعت میں فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ کا امام ہی بالکل داڑھی منڈا ہو، اس کو آپ برداشت کریں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے کہ جی یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ جماعت کروائے۔ تو امامت کے لیے وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ جو 2 رکعت کی امامت رہتی ہے، یا 3 رکعت کی امامت، یا 4 رکعت کی امامت، اس کے تقاضے بڑے سخت ہیں اور آج تک سخت ہیں۔ آپ اپنے امام کو اب بھی معاف نہیں کرتے، امام رکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں آپ، ایسا ہے یا نہیں؟ صرف آپ نے 2 رکعتیں اس کے پیچھے پڑھنی، 4 رکعتیں پڑھنی، 3 رکعتیں پڑھنی، یا جمعہ اور عید کی نماز پڑھنی۔ باقی تو امام کو ہم نے بہت ساری ڈیوٹیاں ہم نے خود سونپ دی ہیں جو امامت میں شامل ہی نہیں۔ باقی جو امامت اصل ہے اس کے لیے تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ نہیں کہ یہ امامت کے قابل ہے یا نہیں۔ کیوں بھائی؟ حالانکہ ہم نے اس کے پیچھے سے نماز پڑھنی ہے، ہم کوئی حکومت اس کے سپرد نہیں کر رہے، یعنی کوئی حکومت اور خلافت اس کے سپرد نہیں کر رہے، صرف نماز کی امامت تک ہم نے رکھنا ہے۔ اس کے لیے بھی ایک معیار ہے، ہر بندہ امامت نہیں کر سکتا، نہ ہر کسی کے بس میں ہے۔ امامت سرداری ہے، بے شک وہ 2 رکعت کی کیوں نہ ہو۔ امامت جو ہے یہ سرداری ہے، وہ بے شک 3 یا 4 رکعت کی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیں نا کہ جب امام کے پیچھے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا امام سے پہلے آپ رکوع کر سکتے ہیں؟ امام سے پہلے سجدہ کر سکتے ہیں؟ امام سے پہلے اٹھ سکتے ہیں؟ امام سے پہلے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت یہ سبق سکھاتی ہے کہ امام بنانے سے پہلے سوچو، جب بنا لو تو پھر اس کے بعد تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، پھر تمہاری اپنی مرضی ختم ہے۔ اچھا 50 بندے پیچھے کھڑے ہوں، 50 کو غلطی لگ جائے تو نماز میں فرق نہیں پڑتا۔ 50 بندوں کو ہی غلطی نہ لگے، ایک امام کو لگ جائے تو سجدہ صاحب سب کو پڑ جاتا ہے۔ فرق ہے یا نہیں؟ یعنی امامت میں اور پیچھے کھڑے ہونے والے بندے میں بہت فرق ہے۔ جس کو آپ نے آگے کھڑا کرنا ہے اس کی آپ نے اقتدا کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، اور یہ نماز کی امامت ہی آپ کو سمجھاتی ہے کہ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ آپ کا غلام نہیں، یہ آپ کا سردار ہے، یہ آپ کا سردار ہے۔ جب سے ہم نے اس سرداری کے تصور کو چھوڑا ہے تب سے ہماری نمازیں خراب ہو گئی ہیں۔ ہم نے یہ تصور جب سے ختم کر دیا ہے، جب سے ہم نے سمجھنا شروع کر دیا کہ امام ہمارا محتاج ہے، ہم ہی اس کے سارا کچھ کرنے والے ہیں، نہیں، رزق تو اللہ کی ذات نے دینا ہے، جس طرح وہ آپ کو رزق دے رہا ہے وہ ان کو بھی دے دے گا، رازق وہ ہے، نمازی رازق نہیں ہوتے، نمازی رازق نہیں ہوتے۔ لیکن جب آپ کسی کو امام بناتے ہیں، وہ جو آپ کو وہ وقت دے رہا ہے وہ اتنا وقت قیمتی ہے کہ وہ کسی اور جگہ پر بھی صرف کرے تو وہ بہت سارے پیسے کما سکتا ہے۔ میرے نزدیک چونکہ میں بھی اس میں سے گزرا ہوں، سب سے مشکل کام کسی مسجد کے اندر امامت کرنا ہوتا ہے۔ آپ تو کسی جگہ جا کے کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے کام کریں اس کے بعد فارغ ہو گئے،
इमामत की ड्यूटी सेरी से शुरू होती है और रात गए तक ईशा की नमाज के बाद तक रहती है, और फिर 5 वक्त बर वक्त हाजिर होना होता है। एक भी नमाज में आगा पीछा हुआ तो आप जिस तरह की बातें करते हैं वो मुझसे कोई ढकी छुपी नहीं है, मैं उनको बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि 1-2 रकत की जो इमामत है उसके लिए ये शराइत है, और जहाँ हुकूमत इस्लामी का जिस बंदे के सपुर्द किया जा रहा है उसके लिए कोई मयार नहीं है। जिसके आप सुपुर्द कर रहे हैं पूरा मुल्क, यही हमारी गलती है। फिर बाद में हम चीखते हैं। आप अपने MPA MNA जिसको आप वजीर बनाते हैं, वजीर आज़म बनाते हैं, सदर बनाते हैं, वजीर आला बनाते हैं, वो तो आप अपने में से किसी शरीफ आदमी का इंतखाब ही नहीं करते। जितने भी लोग आते हैं उनमें से कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इनके अखलाक और किरदार देखें तो वो इतने घटिया हैं कि उनके पीछे तो 2 रकत की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। आपने 5 साल के लिए उनको इमामत दे दी है। यानी कम अज कम इमाम अली मकाम की जो शहादत है उसको समझे तो सही। इमाम अली मकाम क्यों शहीद हो गए भाई? इतना कीमती वजूद जिसको सहाबा कराम खड़ा करके देखें और कहें कि वजूद हमसे ये कहीं गायब ना हो जाए, जब हम इनको देख लेते हैं हुजूर याद आ जाते हैं। यानी ये तो समझना चाहिए कि इतनी बड़ी कुर्बानी इमाम अली मकाम ने क्यों दे दी। छोटी कुर्बानी नहीं यार। इमाम अली मकाम को पता था कि मेरा हाथ कितना वजनी हाथ है। तन्हा इमाम हुसैन का हाथ नहीं था वो, बल्कि ये ऐसा हाथ था जिससे आदम अलैहिस्सलाम से लेके आपके बड़े भाई इमाम हसन तक की तहारत और पाकीज़गी जुड़ी हुई थी। ऊपर वाली गारंटी तो हुजूर ने खुद दे दी। एक मौके पर सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और आपने फरमाया लम उज़ल उनकलु मिन अस्लाबि ताहिरीन इला रहम ताहिरात। दुनिया वालों मुझे पहचान लो, मैं कौन हूँ। आदम अलैहिस्सलाम से लेके मेरे बाप अब्दुल्ला तक और हव्वा सलाम अल्लाह अलैहा से लेके मेरी माँ आमना तक, मेरे बापों में भी कोई नापाक नहीं गुजरा और मेरी माँओं से भी कोई नापाक नहीं गुजरी। ये खुद हुजूर ने फरमाया, कोई नापाक उनमें हुआ ही नहीं। ये गारंटी ऊपर से हो गई। अब अगली गारंटी कुरान दे रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ मेरे महबूब की अहले बैत, अल्लाह का इरादा ये है कि वो तुम्हें ऐसा पाक कर दे कि किसी किस्म की निजासत तुम्हारे अंदर रहे। इसी पाकीज़गी का नतीजा है कि रसूल पाक ने अपनी औलाद, अपनी अहले बैत पर ज़कात सदका हराम करार दे दिया। ज़कात और सदका जो है ये माल की मैल होता है। बोलो माल की। एक बंदा मुझे कहने लगा कि ये भी ढोंग रचाया हुआ है कि जी सैयद बड़े आला दर्जे के होते हैं और आम लोग जो हैं वो नहीं होते। मैंने कहा नहीं, ढोंग नहीं, इसके साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो तुम्हें समझ नहीं है। वो कहते नहीं, को फ़र्क बताएं। मैंने कहा सैयद गरीब हो जाए तो ज़कात ले सकता है? कहता है जी नहीं। मैंने कहा अगर तुम गरीब हो जाओ तो ले सकते हो? कहता है जी। मैंने कहा तुम ज़कात लेने के अंदर भी सैयद जैसे नहीं हो। ज़कात लेने में भी तुम सैयद की मिसाल नहीं हो। तो बात करते हो ऊपर की। ये आज के सैयद की मिसाल है। आम बंदा आज के सैयद की तरह नहीं हो सकता, चे जाए कि रसूल पाक की ज़ात की तरह बनने की कोशिश करे। तो आपको ये मालूम था कि मेरे हाथ में आदम अलैहिस्सलाम से लेके मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नबूवत और रिसालत का तमाम फैज़ इस मेरे हाथ में मौजूद है। और ये भी पता था कि इस मेरे हाथ में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत भी मौजूद है। ये भी मालूम था कि फ़ारूक आज़म की अदालत भी मौजूद है।
ये भी पता था कि उस्मान गनी की सखावत भी मौजूद है, ये भी पता था कि हैदर कर्रार मेरे बाबा जान की शुजात भी मौजूद है, और ये भी पता था कि मेरे बड़े भाई इमाम हसन का किरदार भी मेरे इसी हाथ में मौजूद है। अब इमाम हुसैन का यजीद के हाथ पर हाथ रख के बैत कर लेना, इसका माना यह था कि सारे नबियों ने यजीद की बैत कर ली, सारे रसूलों ने यजीद की बैत कर ली, खुलाफाए राशिदीन ने यजीद की बैत कर ली, इमाम हसन ने यजीद की बैत कर ली। आपकी कुर्बानी ही है जो आपको आज खड़ा करती है। जितनी भी दुनिया के अंदर तहरीकें चली हैं बातिल के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, दगा और फरेब के खिलाफ, ज्यादती के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, वहां जिस बंदे को भी जुर्रत मिली है उसको सैयदना इमाम हुसैन की शहादत से मिली है, वरना बाकी आपके पास तो बड़े सारे रास्ते हैं। अगर जुल्म किसी जगह पर जाके खत्म हो सकता है और जालिम को ठिकाने लगाया जा सकता है और जालिम को ऐसा दफन किया जा सकता है कि फिर रहती दुनिया तक उस पर लानतें ही बरसेंगी, तो ये किरदार सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का है। अब ये सबक भूल गए हैं हम, बाकी सारी दुनिया की बैत एक तरफ और इमाम अली मकाम अकेले की बैत एक तरफ। क्योंकि आपकी जात कोई मामूली जात नहीं, आम लोगों की तरह तो है नहीं। देखें, ये पहली रिवायत है, इस तरह कभी जंगों में हुआ नहीं है। इससे पहले कभी भी सर काट के नेज़ों के ऊपर बुलंद करने की रवायत इससे पहले कभी नहीं थी। क्यों जी? यानी अगर आप पढ़े मुताला करें, इससे पहले भी जंगें हुई हैं, जंगे बदर हुई है, लेकिन इस तरह की रवायत कोई नहीं कि अगर किसी के कब्जे में कोई दुश्मन का बंदा आ गया तो उसका सर काटा और नेज़े के ऊपर चढ़ा दिया, ऐसी रवायत नहीं थी। गज़वा उहद हुआ है, गज़वा खंदक हुआ है, खैबर हुआ है, इससे पहले भी कुरैश की जंगें हुई हैं, पहले भी यहूदी ईसाई आपस में लड़ते मरते रहे, बहुत सारी जंगें हुई, लेकिन इस तरह की रवायत पहले मौजूद नहीं थी। ये अनोखी एक बिदअत थी जो यजीद के करिंदों और जालिमों ने वज़ा की। असल में फितरत कुछ और दिखा रही थी, चूंकि मामला ऐसा था, परवरदिगार वो जो भी वो अपनी तरफ से ज्यादती कर रहे थे, लेकिन सर काट के उन्होंने नेज़ों के ऊपर चढ़ा लिए, नेज़ों के ऊपर और खड़े कर ली। आवाज आ रही थी, जिन सरों को तुम अपने आगे झुकाना चाहते हो ये ऐसे सर हैं कि कट के भी तुम्हारे सरों से ऊंचे हैं, ये ऐसे सर हैं कि जो अपने तनों से जुदा होके भी अब तुम्हारे सरों से यजीदियों ऊंचे हैं।